بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب جوان ہوئی تو سب کہتے کہ حسین کی بیٹی سونیا پر مہربان ہے، مگر میں کسی کو کیا بتاتی کہ میری خوبصورتی نے مجھے کیا دن دکھائے تھے اور میں کس کس عذاب سے گزری تھی۔ اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں تھا، بلکہ میری بد نصیبی نے تو میرا پیچھا آخر تک نہیں چھوڑا۔ میں اب بھی یہی سوچتی ہوں اور روتی ہوں کہ کاش میں کبھی وہ کام نہ کرتی تو شاید میری زندگی میں بھی کچھ سکون ہوتا، مگر جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا ہی کب ہے۔ میری کہانی بہت عجیب تھی، اتنی کہ جو سنتا وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہ جاتا۔ میرا نام سونیا ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ابا کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا اور میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور میرا پیٹ پال رہی تھی۔ اماں بتاتی تھی کہ جب تک ابا زندہ تھے ہم اپنے گاؤں والے گھر میں رہتے تھے، مگر جب ابا کا انتقال ہوا تو ابا کے بھائی نے مجھے اور اماں کو گھر سے نکال کر وہاں قبضہ کر لیا۔ میری اماں کی ایک کزن شہر میں رہتی تھی اور کچھ امیر لوگوں کے ہاں کام کرتی تھی۔ اماں نے اس سے بات کی تو اس نے اماں کو بھی 2 جگہ کام پر لگوا دیا۔ اس طرح اماں مجھے لے کر شہر آ گئی۔ اماں کو 2 بنگلوں میں کام تو مل گیا تھا، مگر رہنے کو جگہ نہیں ملی، اس لیے اماں شروع میں اپنی خالہ زاد بہن زکیہ کے ساتھ رہنے لگی، جس نے اماں کو کام پہ لگوایا تھا۔ زکیہ خالہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور وہ بیوہ تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں بڑی تھیں مگر پڑھتی نہیں تھی، تو ان میں سے ایک ماں کے ساتھ کام پر جاتی اور دوسری گھر پر رکتی تھی۔ خالہ کا بیٹا 7 سال کا تھا اور وہ اسکول جاتا تھا۔ جب اماں شہر آئی اس وقت میں 10 سال کی تھی۔ وہ مجھے زکیہ خالہ کی بڑی بیٹی کے پاس چھوڑ کر خود کام پر چلی جاتی اور شام کو واپس آیا کرتی تھی۔ میں گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی، مگر جب سے ہم شہر آئے تھے میں گھر میں ہی رہتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں اور یہاں کے راستوں سے تھوڑی واقفیت ہو جائے تو تجھے اسکول میں ڈال دوں گی۔ اور پھر 2-3 مہینوں بعد اماں کو جب نئے بنگلے میں کام ملا تو وہیں رہائش کا انتظام بھی ہو گیا، کیونکہ وہاں اماں کو صبح سے رات تک کام سنبھالنے تھے، اس لیے وہاں مالکن نے سرونٹ کوارٹر میں ہمیں ایک کمرہ دے دیا، جہاں 2-3 کمرے اور تھے اور بنگلے کے مستقل ملازمین وہیں رہتے تھے۔ یہ بنگلہ جس کا تھا وہ شہر کے مشہور بزنس مین تھے اور ان کی بیوی کو کچن سنبھالنے کے لیے ایسی ملازمہ کی ضرورت تھی جو صفائی کے ساتھ کام کرتی ہو۔ اماں نے مالکن کی توقع کے مطابق کام کر کے دکھایا تو انہوں نے اماں کو نوکری دے دی۔ مفت رہائش کے ساتھ کھانا پینا بھی ملتا ہے اور اماں کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ مالکن نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ تمام ملازمین کا کھانا ایک ساتھ الگ بنتا تھا، مگر وہ جو چاہیں وہ بنا سکتے تھے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہمارے علاوہ 3 کمروں میں ملازم اپنی فیملی سمیت رہتے تھے، وہ ایک دن سب کی مرضی اور پسند کا کھانا اماں بنا لیا کرتی تھی۔ اس طرح یہاں آنے کے بعد بہت سکون تھا، بس مسئلہ تھا تو وہ میری پڑھائی کا۔ ایک دن اماں نے مالکن سے بات کی کہ میری بیٹی پڑھنے میں بہت اچھی ہے اور میں اسے پڑھانا چاہتی ہوں۔ مالکن یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اماں نے اپنی بچی کو اسکول بھیجنے کی بات کی۔ انہوں نے اپنے چوکیدار سے کہہ کر اماں کو اسکول میں بھیج دیا جہاں چوکیدار کے بچے پڑھتے تھے اور سب کی تعلیم کا خرچہ بھی مالکن ہی دیتی تھی۔ اماں ان کو بہت دعائیں دیتی کیونکہ ایسے بڑے دل والے لوگ ہر جگہ نہیں ملتے، ورنہ میرے سگے چچا نے جیسے ہمیں گھر سے نکالا تھا وہ بھی تو ایک مثال ہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، ہمیں ہمدانی صاحب کے اس بنگلے میں رہتے ہوئے 4 سال گزر گئے۔ اماں اب تک وہ اچھی کھانے کا سارا کام دیکھتی تھی، بلکہ اب تو وہ کھانے بنانے میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ مالکن کے ایک اشارے پر ہر طرح کا کھانا تیار کر لیتی، یہاں تک کہ چھوٹی موٹی پارٹیز کے لیے اماں ہی کھانا تیار کرتی تھی۔ میں 15ویں سال میں تھی اور میٹرک مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ اسکول میں اور گھر میں سب کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور کہیں سے بھی ایک غریب ملازمہ کی بیٹی نہیں لگتی، مگر مجھے فخر تھا کہ میری اماں نے مجھے اتنی محنت سے حلال رزق کما کر پالا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بھی اماں کو اکیلا نہیں چھوڑا اور مسز ہمدانی کی شکل میں ہمیں ایک بہترین مددگار عطا فرما دیا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہماری زندگی اتنی اچھی نہ ہوتی۔ جب میرا میٹرک مکمل ہوا تو میں نے اماں کے کہنے پر نرسنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں میڈیکل فیلڈ میں جاؤں اور نرس بن جانے پر جاب کر لوں، پھر اماں یہ نوکری چھوڑ دے گی، کیونکہ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے تھے اماں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں بھی اپنی ماں کو جلد از جلد تمام ذمہ داریوں سے الگ کر دینا چاہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ اماں اب آرام کرے، گھر میں رہے اور میں کما کر لاؤں۔ میں اسی مقصد کے تحت پڑھ رہی تھی، مگر نرسنگ کے 30 سال میں میری زندگی کا پہلا جھٹکا مجھے لگا، وہ میری اماں کی دائمی جدائی تھی۔ اماں ایک دن کچن میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر گر گئی اور پھر اماں کو کبھی ہوش ہی نہ آیا۔ چوکیدار اور اس کی بیوی اماں کو اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اچانک شدید ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھ پر یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی۔
पहले जब अब्बा गए थे तब मैं 10 साल की थी और जमाने के गर्म सर्द को नहीं समझती थी। और फिर अम्मा ने अपनी मोहब्बत के साए तले मुझे छुपा कर परवान चढ़ाया तो कभी किसी बात की फिक्र ही नहीं हुई। लेकिन अब तो मुझे हर अच्छी बुरी चीज का इल्म था। मैं जानती थी कि जमाना एक अकेली लड़की को सुकून से जीने नहीं देता और मेरा तो अम्मा के सिवा दुनिया में कोई था भी नहीं। उनके जाने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अम्मा को फौत हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। एक दिन मालकन ने मुझे बुलाया और पूछने लगी कि अब क्या इरादा है, क्या करना चाहती हो। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे हॉस्टल में शिफ्ट होना है और तालीम मुकम्मल होते ही मैं जॉब कर लूंगी और मजीद आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मालकन मेरी बातें गौर से सुनती रही और फिर कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारी माँ ने बहुत ईमानदारी से हमारी खिदमत की है तो इतना हक बनता है कि हम उसकी बेटी का ख्याल रखें, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि जाने मालकन क्या शर्त रख दें जो मैं पूरी कर सकूं या ना। फिर भी मैंने उनसे कह दिया कि बताएं क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि 1.5 साल में तुम्हें हॉस्टल में रहने और तालीम पूरी करने का पूरा खर्च हर माह देती रहूंगी, जो तुम हर माह की यकम को आकर मुझसे ले जाया करना। मगर शर्त यह है कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं कोई मुनासिब रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। शर्त सुनकर मेरी जान में जान आई और मैं समझ गई कि वो चाहती हैं कि मैं अपने घर की हो जाऊं ताकि अकेली न रहूं। और मैं जानती थी कि मालकिन बहुत ही अच्छी खातून है, इस वजह से मैंने उनकी शर्त मान ली और वादा किया कि ऐसा ही करूंगी। आप जहां बेहतर समझेंगी मैं शादी कर लूंगी। यही बात सुनकर वो मुस्कुराने लग गई और मैं हॉस्टल में जाने की तैयारी करने लग गई। उन्होंने मेरे कॉलेज के हॉस्टल में ही मेरी 6 माह की एडवांस फीस जमा करवा दी और हर महीने मुझे खर्चा लेने के लिए आने का कहा और मैं उनसे इजाजत लेकर हॉस्टल शिफ्ट हो गई। हॉस्टल आने के बाद मैंने अपनी सारी तवज्जो अपनी तालीम की तरफ कर दी। किसी से दोस्ती वगैरह नहीं रखी, बस सबसे सलाम दुआ थी। पढ़ने में बचपन से ही मैं बहुत अच्छी थी और अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही। अपनी हर कामयाबी पर मुझे अम्मा बहुत ज्यादा याद आती तो मुझे बहुत रोना आता। हॉस्टल में मेरी एक रूममेट थी जिसका नाम नाजिया था। वो मिडिल क्लास घराने से थी और अक्सर मुझसे बातें करने लग जाती थी। इसने अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था। उसका ताल्लुक किसी गांव से था, इसलिए यहाँ हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की तालीम और ट्रेनिंग ले रही थी। नाजिया बड़ी जिंदा दिल लड़की थी। इसके अब्बा की गांव में एक छोटी सी दुकान थी और घर में अम्मा अब्बा के अलावा भाई और भाभी रहते थे। वो बताती थी कि इसकी भाभी बहुत तेज औरत थी और इसी वजह से वो चाहती थी कि नर्स बनकर जब जॉब करे तो अपने अम्मा अब्बा को अपने साथ ही रख लेगी शहर में। इसलिए उसने भी बहुत मेहनत की थी। मुझे वो अपनी अपनी सी लगती, मगर इसके बावजूद मैं उससे ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। मुझे डर लगता था कि कहीं वो भी मुझसे दूर ना हो जाए। इसके बावजूद वो मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझसे पूछती रहती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। और फिर एक दिन मैंने इसे अपने बारे में सब बता दिया। मैं रो रही थी तो वो भी रोने लग गए और फिर इसने अपने और मेरे आंसू साफ किए और कहने लगी कि जिंदगी में खुद को अकेला नहीं समझना, आज से हम दोनों बहनें हैं और फिर हम दोनों हर जगह साथ ही दिखाई देती हैं। कमरा हमारा वैसे ही एक था। नाजिया से दोस्ती के बाद मेरा अकेलापन बहुत हद तक दूर हो गया। अब मैं हर माह जब मालकिन से मिलने जाती तो नाजिया मुझे जल्दी वापस आने का कहती। हालांकि मैं मालकिन से मिलकर 2-4 घंटों में ही वापस चली जाया करती और जब वो हर 3 माह बाद मुझे या 6 माह बाद अपने अम्मा अब्बा से मिलने गाँव जाती तो 5-6 दिन या 1 हफ्ता लगा देती थी। तब मैं बहुत उदास हो जाती। लेकिन जल्द ही हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और हम दोनों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। मगर हमने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। जॉब के बाद मैं मालकिन से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं कर देती तब तक मिलने आती रहना और मैंने कुछ जानने वालों से तुम्हारे रिश्ते का कह दिया है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अब अपने वादे से मुकर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने मालकिन को कह दिया कि ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। और दूसरी तरफ नाजिया भी किसी अच्छी मुलाजमत के इंतजार में थी ताकि यहाँ कोई घर किराए पर लेकर अपने माँ बाप को यहाँ ले आए। मगर इसके अब्बा ने भी इसकी शादी का फैसला सुनाकर शहर आने से इनकार कर दिया। इसके अब्बा ने कहा कि हम रिश्ते देख रहे हैं, जैसे ही अच्छा रिश्ता मिला हम तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम्हारे शौहर की मर्जी के तुम्हें नौकरी करने दे या रोक दे। नाजिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि क्या फायदा पढ़ लिख कर नर्स बनने का, अगर शादी करके घर ही बैठना था। मगर वो भी मेरी तरह मजबूर थी। हम दोनों ही अपनी आने वाली जिंदगी के फैसलों का इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। मगर जो हुआ वो किसी तरह भी हमारे दिलो दिमाग में नहीं था। एक बड़ी क़यामत थी जो मुझ पर टूटी थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन हॉस्पिटल में एक नौजवान मरीज दाखिल हुआ। अच्छे खासे अमीर लोग थे। लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। वो जब आया उस वक्त ड्यूटी पर मैं थी, इसे मैंने ही अटेंड किया, इसलिए इस रूम में मेरी ड्यूटी लग गई। मगर वो लड़का तो जान का अजाब बन गया।
मैं जब उसे डोज लगाने जाती तो वो कभी मुझे एक टिक देखता रहता, और एक दिन तो उसने हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ाकर इसे बुरा भला कहा और कमरे से निकल गई। इसके बाद मैंने नाजिया को डोज लगाने के लिए वहां भेजा, मगर उसने जिद पकड़ ली कि वो सिर्फ मुझसे डोज लगवाएगा, और बात हॉस्पिटल के मालिक तक जा पहुंची। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि अपना काम पूरा करें, तो मुझे मजबूरन उसके कमरे में जाना पड़ा, मगर मैं अकेली नहीं गई, अपने साथ नाजिया को लेकर गई। पर वो तो कोई बहुत ही सरफिरा आदमी था। इसने दोबारा वही नाज़ेबा हरकत की तो मेरा हाथ उठ गया, पर यह थप्पड़ मुझे इतना महंगा पड़ेगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसने मुझे धमकी दी कि तुझे अपने हुस्न पर बड़ा गरूर है, तो जैसी तो मेरे आगे पीछे फिरती है तो 2 टके की लड़की। फिर 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया, मगर जो होने वाला था वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। एक दिन मैं हॉस्पिटल से निकली तो वहीं सड़क किनारे मेरे सामने अचानक ही बाइक आकर रुकी, और फिर मेरी चीखें हवा में बुलंद होने लगी। मैंने उसे देखा तो नहीं था कि वो कौन था, मगर मुझे पूरा यकीन था कि इसी बददिमाग लड़के ने मेरे चेहरे पर तेजाब डलवा दिया था। वहाँ 1 हफ्ते तक आईसीयू में मैं रही, वही जिस हॉस्पिटल में मेरी जॉब थी। अब वहाँ मैं एक एसिड विक्टिम बन चुकी थी। कानूनी कार्रवाई तो हुई, मगर वो पैसे वाले लोग थे इसलिए बड़ी आसानी से बच निकले, मगर मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तेजाब से मेरे चेहरे की बाईं साइड झुलस गई थी। तावान के तौर पर मेरा इलाज करवाने के लिए एक मोटी रकम दे दी गई थी, जिससे मेरी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, मगर चेहरा अपनी असल हालत में तो नहीं आ सकता था, अलबत्ता थोड़ा बेहतर हो गया था। इस हादसे ने मेरे दिलो दिमाग पर बुरा असर डाला। मेरी माँ जहाँ काम करती थी, इस बंगले के मालिक हमदानी साहब ने मेरा केस लड़ने के लिए अपील की, और कुछ अरसा केस चलता रहा, मगर जिसने ये सब करवाया था वो तो पहले ही मुल्क से बाहर जा चुका, और वैसे भी इसके पकड़े जाने से मेरी जिंदगी और शक्ल तो दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती थी। इस सब के दौरान मेरी दोस्त नाजिया और मिसेस हमदानी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट कर दी थी, मगर मिसेस हमदानी अब कुछ और ही सोच रही थी। जब इस हादसे को 6 महीने गुजर गए तो नाजिया के अब्बा ने नाजिया की शादी करवा दी, और वो दूसरे शहर चली गई। वहां से इसके साथ मेरा राब्ता फोन पर था, मगर बहुत कम। और फिर नाजिया की शादी के 2 माह बाद मिसेस हमदानी ने मेरा रिश्ता तय करवा दिया। मिसेस हमदानी के बंगले में जो चौकीदार था, इसकी बीवी ने अपने जानने वालों में रिश्ता करवाया था। वो लोग मेरे साथ हुए हादसे के बारे में जानते थे, बल्कि मुझे देखने भी आए थे, मगर उनका मुंह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद था क्योंकि मिसेस हमदानी ने उनके बेटे को नौकरी दिलवाने का वादा किया और भारी जहेज की भी बात की। साफ जाहिर था कि लालची किस्म के लोग थे, मगर इस दुनिया की तल्ख सच्चाई यही है कि जहाँ पैसा हो वहाँ हर ऐब छुप जाता है। इस तरह मेरी शादी रफीक से हो गई। रफीक भी अपनी माँ और बहनों जैसा लालची इंसान था, मगर मिसेस हमदानी की वजह से उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, मगर ऐसी तालीम भी कोई फायदा नहीं देती जब तरबियत में लालच और खुदगर्जी छुपी हो। मेरे ससुराल में मेरी सास और रफीक के अलावा मेरी 3 नंदें थी। कहने को तो वो रफीक से छोटी थी, मगर माँ और भाई पर उनका पूरा राज था, और मैं तो किसी भी तरह किसी के लिए भी अहम नहीं थी। वो तो बस जहेज से घर भर दिया था मालकिन ने, इसलिए मुझे बर्दाश्त करके मुझ पर एहसान किया जा रहा था, और इस एहसान को मेरी सास सुबह शाम मुझे याद दिलाती थी। मेरी नंदें थोड़ा बहुत पढ़कर अब रिश्तों के इंतजार में घर बैठी थी, और इनके ख्याल था कि पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं होता, बस जमाने के साथ चलना आना चाहिए, तब इंसान की पहचान बनती है। इसलिए वो तीनों हर वक्त सर से पैर तक सजी संवरी रहती थी। एक मर्तबा मैंने अपनी सास से कहा कि कुंवारी लड़कियों का इस तरह सजनी संवरते रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज के जमाने में लड़की जितनी सादा मिजाज और सुलझी हुई हो, इतने अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। मगर मेरी सास तो मेरे गले ही बढ़ गई। कहने लगी कि खुद की तो ना शक्ल है और ना अकल, इसलिए मेरी बेटियों से जलती हो। उस दिन के बाद से मैंने सास को कुछ कहा ना नंदो। 4 कमरों और एक बड़े सहन के इस घर में मेरी हैसियत थी ही क्या। मैं सुबह से रात तक काम और सिर्फ काम करती थी। सुबह का नाश्ता बनाकर सफाई और बर्तन, और फिर दोपहर के खाने की तैयारी। खाना बनते और खाते कब दोपहर बीत जाती पता ही नहीं चलता था। जरा कमर सीधी करने को लेटने अपने कमरे में जाती तो उस वक्त किसी नंद या सास की आवाज आ जाती, क्योंकि वो लोग शाम की चाय लाजमी पीती थी और साथ लवाजमात का होना लाजमा मलजूम था। इस चक्कर में कभी समोसे तो कभी कबाब या ऐसी कोई चीज मुझे बनाकर फ्रीज करनी पड़ती, ताकि जो हुक्म मिले मैं वही निकाल कर गर्म करूं और महारानियों की खिदमत में पेश कर दूं, और फिर इसके बाद रात के खाने का ऑर्डर मिल जाता। मुझे समझ नहीं आती थी कि रफीक की तनख्वाह इतनी ज्यादा भी नहीं थी। इस घर में 2 टाइम का खाना अलग अलग बनता, और रात के खाने में तो कम से कम 2 तरह के सालन बनना जरूरी थे, और साथ चावल भी, क्योंकि छोटी नंद रात के खाने में चावल खाना पसंद थे। फिर मुझे एक दिन मालूम हुआ कि मेरे ससुर सरकारी ऑफिसर थे और उनकी पेंशन भी आया करती थी। तभी तो इन माँ बेटियों के इतने ठाट थे।
और फिर रफीक की सारी तनख्वाह भी माँ के हाथ में ही जाया करती थी। उनका बस चलता तो मुझे भी नौकरी पर दोबारा भेजते थे, मगर वो तो मिस हमदानी की वजह से कुछ राहत मिली हुई थी। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। ये लोग जैसे भी थे अब यही मेरे अपने थे और मुझे इन्हीं के साथ जिंदगी गुजारनी थी। मेरी शादी को 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन मेरे यहाँ औलाद की खुशखबरी नहीं थी। मेरी सास मुझे इस बात के भी ताने देने लग गई थी। और फिर मेरी बड़ी नंद की शादी पक्की हो गई, जिसके लिए मेरे शौहर ने कर्ज लिया और बहन को धूमधाम से रुखसत किया। अब 2 नंदें बाकी थी और मेरी सास चाहती थी कि इनकी भी शादी ऐसे ही हो जाए, मगर उससे पहले मेरी जिंदगी में एक और क़यामत टूट पड़ी। रफीक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो माजूर हो गया। उसकी एक टांग काटनी पड़ गई और वो मुकम्मल तौर पर 3 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ गया। इस दौरान घर में खर्चों पर बहुत लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और आखिर तंग आकर मैंने सास की इजाजत से एक अस्पताल में दोबारा नर्स की नौकरी कर ली। सुबह को काम करके मैं हॉस्पिटल जाती और 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करके जब वापस आती तो सारे घर का काम मेरे इंतजार कर रहे होते थे। मैं ही खाना बनाती और सबको खिलाती। मेरी नंदें किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, वो बस हर वक्त टीवी या अपने फोन में बिजी रहती। और यही हाल मेरी सास का था। मुझे नौकरी और घर के कामों के साथ साथ रफीक को भी संभालना पड़ता था और इस सब से मैं बहुत थक जाती थी। मगर मेरी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज सी नहीं थी। ऊपर से कर्ज की किस्त भी अदा करनी होती थी जो नंद की शादी पर रफीक ने लिया था। मैंने फिर सोच समझकर अपने हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर से बात की कि वो रफीक की नकली टांग लगवा दे ताकि वो अपनी नौकरी पर जा सके। वहां तो उसे कुर्सी पर बैठकर ही काम करना था, इसलिए मैं चाहती थी कि अगर नकली टांग लग जाए तो मैं अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाती रहूंगी। मगर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम मेरे घर में मेरी बीवी को संभालने की नौकरी कर लो तो मैं तुम्हारा ये काम बिल्कुल फ्री में करवा दूंगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मैंने फौरन हाँ कर दी और दूसरे दिन डॉक्टर के घर चली गई। डॉक्टर की बीवी बीमार थी और मुझे बतौर नर्स इसे संभालना था, मगर मुझे 1 हफ्ते में ही अंदाजा हो गया कि कोई और नर्स क्यों डॉक्टर के घर में नहीं टिकी थी। दरअसल डॉक्टर की बीवी शबाना बेगम मिजाज की बहुत सख्त थी। वो ना सिर्फ खाना अपनी मर्जी का खाती थी, बल्कि बिस्तर पर लेटे लेटे इनको अपने लिबास से लेकर बालों की सेटिंग तक उनकी मर्जी की चाहिए होती थी, जिसमें वो किसी किस्म की कमी बेशी बर्दाश्त नहीं करती थी। इनकी खिदमत के लिए 2 लोग थे। एक मैं थी जो उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखती और उनके कमरे से बाहर लॉन तक ले जाती, और एक दूसरी मुलाजमा थी जो इनके खाने पीने से लेकर इनके कपड़ों और बाकी चीजों की देखभाल करती थी। इसकी जिम्मे था कि वो बेगम साहबा को तैयार करे और इनके मूड के मुताबिक हर काम करे। मगर आहिस्ता आहिस्ता बेगम साहबा मुझ पर भरोसा करने लग गई थी। मुझे उनके पास काम करते हुए 1 माह गुजर गया। इस दौरान डॉक्टर साहब ने रफीक की नकली टांग भी लगवा दी और वो दोबारा जॉब पर जाने लगा था। मगर इन 5 महीनों में उसके मिजाज में काफी तब्दीली भी आ गई। अब वो पहले की तरह मुझसे बदसलूकी नहीं करता था, बल्कि इसे एहसास हो गया था कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, वो अपनी जिंदगी को आबाद या बर्बाद अपनी मर्जी से करे। हम बस ये रिश्ते ही होते हैं जो इसे हर हाल में जीने की हिम्मत देते हैं। मुझे बेगम साहबा के पास काम करते हुए 2 माह हो गए, मगर मैं उनके पास 24 घंटे तो नहीं रुकती थी। मेरी ड्यूटी तो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक थी, बस उसके बाद दूसरी मुलाजमा देखती थी। इसलिए मुझे पता नहीं चला कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो एक दिन मुझे ये पे कुछ ऐसा इंकशाफ हुआ कि मेरी रूह लटके रह गई। वो कुछ यूं कि मैं एक शाम अपनी नंद के साथ बाजार गई। मेरी दूसरी नंद की शादी थी तो इसके लिए खरीदारी करनी थी, मगर मैंने देखा कि डॉक्टर की बीवी बेगम शबाना भी बाजार में किसी औरत के साथ फिर रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि एक तो ये बाजार ऐसा नहीं था कि जहां शबाना बेगम जैसे लोग आते। दूसरा सबसे हैरत की बात यह थी कि वो तो बिस्तर पे पड़ी थी। फिर मैंने किसे देख लिया। मैं यही सोच रही थी कि एकदम रश की वजह से वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। फिर सारा वक्त और घर आने के बाद भी मेरा जहन उलझा रहा, मगर मैंने किसी से बात नहीं की। और फिर जब दूसरे दिन मैं ड्यूटी पे गई तो बेगम साहबा को रोज की तरह बिस्तर पर पड़े देखा, तो फिर मुझे और परेशानी होने लगी। लेकिन मैंने यही सोचा कि मैंने कल शाम देखा था, वो यकीनन मेरा वहम ही था। मैं सर झटक कामों में मसरूफ हो गई। मगर कुछ देर बाद मुझे बेगम साहबा ने अपने पास बैठने को कहा। मैं कुर्सी पे बैठ गई तो वो कहने लगी कि देखो सोनिया, मैं जानती हूँ तुमने कल मुझे बाहर बाजार में देखा था, और मुझे ये भी पता है कि तुम परेशान हो कि मैं वहां कैसे नजर आई तुम्हें। तो ये सच है कि वो मैं ही थी। मैं हैरान परेशान सी उनका मुंह देख रही थी। वो उठकर बैठ गई और बिल्कुल ठीक लग रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल डॉक्टर साहब ने मुझे किसी शादी में देखकर पसंद किया था और फिर मेरे घर रिश्ता भेजकर मुझसे शादी कर ली। मगर मैं गरीब घर से थी और डॉक्टर साहब बहुत बड़े हॉस्पिटल के मालिक थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर कई तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती थी।
अपने गरीब रिश्तेदारों से मिल नहीं सकती थी और तो और वो मुझ पर शक भी करते थे, जिसकी वजह से मैं मुसलसल ज़हनी तौर पर बीमार रहने लगी और डिप्रेशन में चली गई। मैंने हर चीज छोड़ दी, यहाँ तक कि मैं चाहती थी कि डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेरे बीमार होने पर मुझे बेहतरीन इलाज मुहैया कर दिया। मेरे लिए मुलाजिम और नर्सें रख दी, मगर मुझे समझने की जहमत नहीं की और ऐसे ही 2 साल गुजर गए। अब कहीं जाकर उनको समझ आने लगी है, मगर अब मेरा दिल उनकी तरफ माइल नहीं होता। मैं पिछले 6 माह से बिल्कुल ठीक हूँ, मगर नाटक करती हूँ कि मैं बीमार हूँ ताकि वो मुझसे दूर ही रहें और बेशक दूसरी शादी कर लें, मगर जो है अब तक वो तुम्हारे सामने है। कल शाम मैं अपनी बहन के साथ गई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब तो वैसे भी रात देर से घर आते हैं। मैं ये सब सुनकर खामोश हो गई। उनकी ज़हनी हालत में समझ रही थी। मैंने तय किया कि डॉक्टर साहब से बात करूंगी और फिर अगले दिन मैंने उनसे बात की। वो शर्मिंदा से नजर आने लगे और उन्होंने कहा कि वो मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब से बात करके जब मैं घर पहुंची तो मेरी बड़ी नंद आई हुई थी और बहुत रो रही थी। मुझे देखते ही इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और माफी मांगने लगी कि भाभी, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मेरी सास भी रोने लगी और मुझे बताया कि मेरी नंद के शौहर ने इसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वो पैसों की डिमांड कर रहा है। रफीक भी वहीं सर पकड़े बैठा था। मैंने अपनी नंद और सास को तसल्ली दी और रफीक को कमरे में ले गई। रफीक से बात की और अलमारी से अपना जेवर निकालकर रफीक को दे दिया कि बहन का घर बचाना ज्यादा जरूरी है। तब मैंने जिंदगी में पहली बार रफीक की नजरों में अपने लिए प्यार और एहसास देखा। इसने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने रफीक के हाथ थाम लिए और इससे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। कुछ दिन बाद मेरी नंद अपने घर जा चुकी थी और इसका शौहर खुद आकर उसे ले गया। छोटी नंद की शादी के लिए डॉक्टर साहब और बेगम साहबा से छुट्टी लेने गई तो मैंने देखा कि वो दोनों लॉन में बैठे हंस बोल रहे हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैंने उनको हमेशा ऐसे ही खुश रहने की दुआ दी और नौकरी छोड़ने का कह दिया, क्योंकि रफीक नहीं चाहता था कि मैं मजीद काम करूं। आज इस सबको 5 साल गुजर चुके हैं। मेरी नंदें अपने घरों में आबाद हैं, सास का इंतकाल हो चुका है और मेरे आंगन में 2 बच्चे खेलते हैं। मैं कभी कभी डॉक्टर साहब की बीवी और अपनी पुरानी मालकन से भी मिलने जाती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसे अच्छे लोगों के दम से ही दुनिया आबाद है। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।